Hello students, today the topic which we are going to revise is endocrine system. Students, in our body there are two kind of control and coordination system. हमारी बॉडी के अंदर there are two kind of control and coordination system. One is nervous system and another one is endocrine system. Today we are going to discuss endocrine system in detail, and in next videos we will discuss about nervous system. Before discussion of endocrine system, let's understand how we discovered this system. Actually, this system was discovered by the scientists Sterling, Bayliss and Sterling. They were not discovering hormones. Most of the scientists ने किसी भी चीज की खोज ये सोचकर नहीं की है कि हमने ये डिस्कवर करना है. It was always a coincidence. Most of the time it was a coincidence. Actually, what they were discussing that when food digested in stomach and when it reached to small intestine, in a small intestine there are certain hormones which are coming from pancreas, that is a pancreatic juices. अब प्रश्न ये था कि pancreatic juices को किसने मैसेज दिया that food is supposed to arrive in pancreas. किसने ऐसा मैसेज दिया? तो वो बेसिकली इस चीज का खोज कर रहे थे, एंड देन दे फाउंड दैट देयर आर सर्टेन केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर दैट इज कॉल्ड हॉर्मोन्स. उनको उन्होंने हार्मोन का नाम दिया. द फर्स्ट हार्मोन दैट दे हैव डिस्कवर्ड वाज सिक्रीटिन. सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. फर्स्ट यदि हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कहाँ से किसके ऊपर काम करता है? वो हार्मोन्स के बेसिस पे काम करता है. व्हाइल नर्वस सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स के बेस पे काम करता है. एंडोक्राइन सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है इट इज कंपैरेटिवली स्लो, व्हाइल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स इज कंपैरेटिवली फास्ट. वो बहुत फास्ट होता है. If I ask you, okay, what is 2 plus 2? You immediately say it's 4, ma'am, or you count it and then you said 4. If I ask you, बच्चे go and bring 2 chalks, it is a nervous system. You bring it and after that you forget it. तो nervous system का जो response है it is a very quick, जबकि endocrine system का response slow होता है. If because of some reason, if I scold you, okay, after that might be you will not react on the same time, but धीरे धीरे आप सोचते रहते हो क्यों कहा, क्या हुआ, एंड दैट हॉर्मोन्स आर वर्किंग राइट नाउ. क्लियर? सिमिलरली जो नर्वस सिस्टम होते हैं दे आर नॉट कंट्रोलिंग आवर ग्रोथ, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रोथ, व्हाइल एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रोथ. नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल योर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, व्हाइल endocrine system regulate your metabolic reactions. What is metabolic reactions? We have two kind of metabolic reactions. One is catabolic, one is anabolic. Catabolic, in which energy is produced, and anabolic, in which energy is consumed. That all these reactions is controlled under that endocrine system, not under the control of nervous system. Definitely nervous system and endocrine system दे फंक्शन टुगेदर, वो दोनों पैरेलल ही चलते हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में डिफरेंस है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है, ओरल में डिस्कस कर लिया तो आई विल ड्रॉप दिस लाइन. ओके, द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. चलिए उसका नाम लिखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ pituitary gland? Let's draw the structure as well as we will discuss its location. It is a pea-shaped structure. पी के एक मटर के दाने जितना, मैंने तो तरबूज बना दिया है, बट इसका जो एक्चुअल साइज है वो पी जितना है. ठीक है? So it is situated in brain and it is attached with hypothalamus. ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है. विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम. इन्फंडिबुलम इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए.
Internally, it is divided into 3 parts. This is intermediate zone और intermediate lobe. ये क्या है इसका? Intermediate lobe है. And this is anterior lobe. ठीक है, इसको हम लेबल करते हैं anterior lobe. This one is posterior lobe. And this one is intermediate lobe. Now, posterior lobe release 2 hormones, vasopressin or ADH plus oxytocin. Clear? Anterior lobe release FSH, follicle stimulating hormone, TSS, thyroid stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. सबका एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन. लेट्स काउंट. इज इट 6? 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट. क्लियर? नाउ इंटरमीडिएट लोब डज नॉट रिलीज एनी हार्मोन. वो कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, बट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेलानोसाइट. Melanocyte is responsible for the formation of melanin pigment, and melanin pigment is responsible for the complexion of skin. Skin के complexion के लिए responsible है. Clear? Now, another important question. This gland is known as master gland. Why it is called master gland? देखिए, आप पहले तो वो समझो, आप पेपर में क्या लिख के आने वाले हो. Control, because it control all other glands. ठीक है, और मैंने आपको नंबर देने 0, बिकॉज इट डज नॉट कंट्रोल ऑल अदर ग्लैंड्स. ये आपकी आंख में से आंसुओं को कंट्रोल नहीं करती है. इट डज नॉट कंट्रोल टीयर ग्लैंड्स. ये आपके पिज्जा के ऊपर जो होता है ना, पिज्जा का नाम सुनते ही सलाइवेशन शुरू होता है. इट डज नॉट कंट्रोल योर सलाइवरी ग्लैंड्स. सो इट डज नॉट कंट्रोल योर लिवर इवन. सो इट इज नॉट कंट्रोलिंग ऑल ग्लैंड्स. इट इज कंट्रोल ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये एंडोक्राइन नहीं लिखा तो 0 है, अदरवाइज अब आपको पूरा नंबर मिल गया. क्लियर? हु कंट्रोल पिट्यूटरी? पिट्यूटरी का भी कोई बॉस है क्या? बिल्कुल. पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. सो व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. क्लियर? चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? ये गोनाड्स के अंदर या टेस्टिस और ओवरीज के अंदर इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. इट विल हेल्प इन द formation of ovum. It will help in the release of testosterone and progesterone hormone also. What is the function of TSH? It helps its full form is thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone stimulates thyroid gland to release thyroxine hormone. अभी काम कैसे करते हैं? यदि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो ये कम निकलेगा. यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है तो ये ज्यादा निकलेगा. इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको हाइपोथैलेमस करेगा. कैसे करेगा बाद में डिस्कस करते हैं. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल. ये फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर? नेक्स्ट इज ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इसका मतलब समझिए, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर है. कॉर्टिको मतलब उसके कॉर्टेक्स रीजन को कंट्रोल करता है. ट्रोपिक हार्मोन, एनी हार्मोन विच स्टिमुलेट एनी ग्लैंड टू रिलीज सम हार्मोन नोन एज ट्रोपिक हार्मोन. ये सारे ट्रोपिक हार्मोन ही हैं. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका HGH, ग्रोथ हार्मोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. इसको हम डिटेल में करेंगे. एंड लास्ट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल. लैक्टिन का मतलब क्या होता है? लैक्टोज, मिल्क. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इन फीमेल. ये फीमेल में आफ्टर प्रेगनेंसी ये लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
ये क्लियर। वासोप्रेसिन एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम यूरिन। ये यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे वहां से वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो बेसिकली इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन। एंड ऑक्सीटोसिन, दिस इज द बर्थ हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन बोलते हैं। एंड दिस बर्थ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो क्या होगा? यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू होगा, द फीटस विल मूव टुवर्ड्स द सर्विक्स। फीटस उतना नीचे आएगा और उसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है। जब ये ऑक्सीटोसिन निकलेगा तभी प्रोलैक्टिन निकलेगा। जब बच्चे का जन्म होगा तभी प्रोलैक्टिन हार्मोन से मिल्क का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टू कंडीशन, हाइपो एंड हाइपर कंडीशन। हाइपो और हाइपर को समझने से पहले, हाइपो और हाइपर इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ एचजीएच हार्मोन एंड इन केस ऑफ वासोप्रेसिन हार्मोन। इनके ऊपर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। सो लेट्स डिस्कस। पहले समझे कि हाइपो और हाइपर कंडीशन होता क्या है। हाइपो कंडीशन इज द कंडीशन इन विच द हार्मोन सिक्रीशन इज लेस एंड हाइपर इज द कंडीशन इन विच सिक्रीशन इज हाई। हम बोलते हैं ना, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है पेपर के अंदर, हाइपो कौन सा है, हाइपर कौन सा है। हमेशा ना बच्चों ऐसे एब्रीवेशंस बना के रखा करो, जुगाड़ लगा के रखा करो। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम में जा से जल, जा से जाइलम। जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। फासे फूड, फासे फ्लोएम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए, हाइपर जो है वो ज्यादा के लिए होता है और हाइपो जो है वो कम के लिए होता है। सो सबसे पहले हम एडीएच हार्मोन पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एडीएच? इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वासोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वासोप्रेसिन। ध्यान से समझिए, एडीएच का सिक्रीशन कम हो रहा है। less secretion of ADH means ADH will absorb less water from the urine content. If it will absorb less water, it means more water will release in the form of urine. It means the patient will have frequent urination. उसको बार बार यूरिनेशन होगा। बार बार यूरिनेशन होगा तो प्यास लगेगी, थर्स्ट बहुत ज्यादा होती है और you may have a problem of डिहाइड्रेशन। आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। दिस डिजीज इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडियस। नाउ व्हाट विल हैपन इफ इट इज रिलीज इन एक्सेस? यदि ये एक्सेस में रिलीज हो रहा है, यदि ये एक्सेस में रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? एडीएच सिक्रीट इन एक्सेस, इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर। इफ इट विल एब्जॉर्ब मोर वाटर मीन्स लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। इफ लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन मीन्स नाइट्रोजन वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। नाइट्रोजन वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा मीन्स टॉक्सिक वेस्ट विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड देन यू विल हैव द अनदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। क्लियर? सेकेंड वन इज सो बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच वी मे हैव अ डिजीज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडियस। इंसिपिडियस का मतलब होता है टेस्टलेस, पानी बहुत निकल रहा है। एक और चीज याद रखिए, यदि यूरिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। इन केस ऑफ कॉलेरा, इफ यू रिमेम्बर इन 9th स्टैंडर्ड यू माइट हैव डन, in case of cholera we have lot of dehydration and that dehydration is in the form of either vomiting or in the form of loose motion. So पानी तो बहुत बाहर निकल रहा है लेकिन वोमिटिंग के थ्रू निकल रहा है, लूज मोशन के थ्रू निकल रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट बाहर नहीं निकल पा रहा, वो तो सिर्फ यूरिन के फॉर्म में बाहर आएगा। Then there will be an accumulation of toxic waste, clear, and that can cause problem. तो वो अच्छा नहीं होता। सेकेंड इज एडीएच का हो गया, हाइपोसिक्रीशन में डायबिटीज इंसिपिडियस डिजीज हो सकती है। Now HGS, that is a human growth hormone, if it is in hyposecretion, ये hyposecretion में है तो it will cause a disease that is called dwarfism. आपकी हाइट, पर्सनैलिटी बिल्कुल छोटी होगी, नाटे होंगे आप। क्लियर? If it is in hypersecretion, now in case of hypersecretion there are two condition. यहाँ पे दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन है? One is गिग्नाटिज्म,
and one is acromegaly. Now what is the difference between गिग्नाटिज्म एंड एक्रोमेगली? दोनों में बड़े लंबे चौड़े स्ट्रक्चर है. ये तब होता है व्हेन दिस हार्मोन इज इन हाइपर सिक्रीशन फ्रॉम द बर्थ. बचपन से पूरा प्रोपोर्शन में लंबी चौड़ी बॉडी होगी. क्लियर? अब एक्रोमेगली में क्या होगा कि ये चाइल्डहुड में शुरू होता है या टीनेज पे शुरू होगा हाइपर सिक्रीशन HGH का. तो या तो लिम्स बहुत लंबे होंगे और ये चीज छोटी होगी, या तो ये एब्डोमिनल रीजन छोटा है, लिम्स लंबे होंगे, या फिर ये फेस का जॉ जो ये वाला ये थोड़ा लंबा होगा. कहने का मतलब है डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है. कैसा ग्रोथ होता है? डिसप्रपोर्शनेट. कोई प्रपोर्शन नहीं है. There is always a proportion between head size, abdominal size, thorax size, limb size. उसमें एक प्रोपोर्शन होता है, लेकिन एक्रोमेगली में ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं होगा. सिर बहुत लंबा हो सकता है, फेस बहुत लंबा हो सकता है, धड़ लंबा हो सकता है, पैर लंबे हो सकते हैं, कुछ भी. लेकिन गिग्नाटिज्म में ओवरऑल बहुत लंबा चौड़ा होता है. सो आई थिंक बाय दिस I have finished pituitary gland. In next video we will discuss about rest of the 3 endocrine glands. Till then, goodbye.